Hello students. So I hope you all are studying good. So today we will discuss about the topic drift velocity. हमने drift velocity के बारे में पहले डिस्कस किया था कि what is the drift velocity. Now we everyone know that in a conductor the electrons flow from negative end of the terminal टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द टर्मिनल. तो जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके वो नेगेटिव टर्म से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं. नाउ हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो मोशन है इलेक्ट्रॉन्स की दैट इज़ नॉट इन द स्ट्रेट डायरेक्शन. रेक्टिलिनियर मोशन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट. इट इज़ लाइक इन अ जिग जैग मोशन. हैपोजैडली दे मूविंग हेयर एंड देयर एंड दे देन गेट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स. मतलब एट लास्ट दे forced to reach at the other end of the conductor, and this drift because they are drifted towards the another end of the conductor from one end to another end, and that is why the velocity they are acquiring is called the drift velocity. So each and every electron is moving in a random direction, but ultimately they are reaching at the other end of the conductor, and that is what the drift velocity is. मतलब वो randomly direction में move कर रहे हैं and at the end they are moving in particular end, that is from one end of the conductor to another end. So that kind of velocity is called the drift velocity. So what is the definition for the drift velocity is, it is the average velocity with which free electrons in conductor get drifted towards. मतलब उसको डायरेक्शन मिलती है, रैंडमली मूव कर रहे हैं बट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर. द पॉजिटिव end of the conductor. So that is your drift velocity. It is the average velocity with which free electrons in the conductor get drifted towards the positive end of the conductor under the influence of external electric field. ये लाइन आप और ऐड कर दिए, under the influence of external electric field. That is your drift velocity. Okay, so drift velocity is your the average velocity, ये ध्यान रखना आपने, of the all free electrons in a conductor who is get drifted towards the positive end. This is your negative terminal and this is your positive terminal. So ये भी आपका negative terminal conductor का बन जाएगा और ये positive terminal बन जाएगा. So get drifted toward the positive end of the conductor under the influence of the external electric field. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपके जो सोर्स है वो आपका क्या है, बैटरी जो है यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है. Now let's see the expression for the drift velocity. First of all, we need to know that the electrons are moving from one end of the conductor to another end. That means उन पे कोई force apply हो रहा है. This is why they are moving from one end to another end. Otherwise, why the electrons will move? And we know that the force is equals to the charge times value of electric field. Charge, that is the value of charge on one electron into the electric field, and we will apply here minus sign. Okay, so that is the negative charge sign, and there is a negative charge also indicating that the force on electron is opposite to the direction of the electric field. That means
अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डायरेक्शन में है तो फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन्स पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है. तो दिस नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग हेयर दैट द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, जैसे हमने +1 क्लास में रीड किया है, तो जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी एक्सेलरेशन भी होगी कि नहीं होगी. सो लेट a इज द एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन. ओके, सो इट विल बी गिवन बाय, हमें पता है अगर हम न्यूटन्स लॉ लगाएं सो एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होती है, फोर्स अपॉन मास, एंड वेयर द मास इज द टोटल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, so we know that the acceleration is equal to force upon mass. Now put the value here of force, it will become minus E into electric field upon mass of one electron. Now अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुकी है, हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है. So we know that to calculate the velocity in terms of acceleration we have the equation of motion. Okay, so now at any instant the velocity of electron is equals to v1 is equal to u1 plus a into t1 at any time t1. okay, ये दिस इज द इक्वेशन फॉर वन इलेक्ट्रॉन. तो ये उस इलेक्ट्रॉन की मोशन की इक्वेशन हो जाएगी, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a into t1. नाउ इफ देर आर n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ, और हमें पता ही है कि जो कंडक्टर होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. So let's suppose वहाँ पे n number of electrons are there. So the equation will become like this: Vn is equal to Un plus A into Tn, है ना. So n number of electrons will be there. So what will be the average velocity? अब हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हमने यहाँ पे किसी एक इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट नहीं कर रहे, क्योंकि हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को तो देख भी नहीं सकते. तो हमने यहाँ पे उनका पूरा ग्रुप देखना है जो इलेक्ट्रॉन्स का मूव कर रहा है. तो इसलिए यहाँ पे हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे. द इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर टू नेगेटिव एंड. सो द एवरेज वेलोसिटी ओके, सो उसका नाम दे देते हैं हम Vd. दैट विल बी इक्वल्स टू ओके v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइडेड बाय n. ये हमारा एवरेज है ना. यूनिफॉर्म मोशन में जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जितनी भी वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की सबको प्लस करके, ठीक है, उतने ही नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो है उस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाती है. तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी होएगी कंडक्टर्स में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट विल बी Vd. ओके, नाउ उसके बाद हम क्या देखते हैं, इफ Vd, अब यहाँ पे हम v1 v2 को अगर ओपन कर दें तो इट बिकम u1 प्लस a इंटू t1 अप टू un प्लस a इंटू tn. तो हम यहाँ पे क्या इनको ओपन कर सकते हैं, यस हम इनको ओपन कर सकते हैं. तो ओपन करने से क्या होगा, हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो हमारी सॉल्व हो जाएगी. सो अगर हम u वाली टर्म्स को एक साथ में रखें, सो u1 प्लस u2 अप टू un वो एक तरफ आ जाएंगे एंड डिवाइड कर देते हैं n से, एंड दिस साइड ऑल्सो a, क्योंकि सब में कॉमन एक्सेलरेशन कॉमन है सबकी, तो a बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा t1
प्लस T2 अप टू Tn, क्योंकि हर जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग टाइम ले रहा है दूसरे एंड पे पहुंचने के लिए, तो हर एक इलेक्ट्रॉन का टाइम भी अलग अलग हो जाएगा। तो उसके साथ भी जो कि n है तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड वी नो जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0, सो टोटल एनर्जी ऑफ द थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी 0, ठीक है, इनिशियली। सो व्हाट विल बी योर इक्वेशन? योर इक्वेशन विल बी Vd इक्वल टू 0 प्लस A इंटू T1 प्लस T2 अप टू Tn डिवाइड बाय n। ओके, नाउ दिस T1 प्लस T2 अप टू Tn है ना, तो ये सारे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और उनकी टाइमिंग है जो टाइम ले रहे हैं। नाउ दिस टाइम इज ऑल्सो इक्वल टू द रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। योर T1 प्लस T2 अप टू Tn डिवाइडेड बाय n इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्यों ये क्या होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम? वी नो दैट कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, कंडक्टर के अंदर, सो देर आर चांसेस कि वो कई बार आपस में टकरा जाए। दो इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉसिबिलिटी इज देयर एट सम इंस्टेंट दे कैन कोलाइड विद ईच अदर। सो व्हाट इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम? एक सक्सेसिव कोलिजन के अंदर जो टाइम लिया है इलेक्ट्रॉन्स में जिसमें उनका कोई कोलिजन नहीं हो रहा किसी के साथ, है ना, यहाँ से मूव किया और यहाँ पे आके वो कोलाइड कर गए, तो इन बिटवीन ये जो टाइम रहा जिसमें वो कोलाइड नहीं हुए, तो इस टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हो जाएगा आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पूरे इलेक्ट्रॉन्स का, पूरे ग्रुप्स का रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा। एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज टाउ, इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज टाउ। नाउ putting the value here, it will become Vd is equal to A into tau, है ना, ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन बन जाएगी। नाउ हमने अभी अभी एक्सेलरेशन को भी कैलकुलेट किया था, दिस वॉज योर एक्सेलरेशन, इसको हम रख लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, सो नाउ द पुटिंग the value of acceleration from equation 1, तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगा? Vd will be equals to minus E into electric field into tau divided by mass or m, that will be your drift velocity. Okay, mention it in your notebook. Thank you very much.